So, hello everyone. So in the last lecture, we have discussed about different types of review, and you have seen that if we conduct in a different way, then in different way means how you are conducting, whether it is a narrow one or whether you can say you are going into the depth of it, or whether it is a theoretical base only. So accordingly, we have different types of review. So from there on, now we'll move towards today's class. Let me share the screen first. Just a minute. The screen now. So in the last lecture, you have seen that we discussed about narrative review, right? Narrative review हमने पढ़ लिया था. So narrative review is somewhat, cello type of knowledge, right? We are not going into the depth of it. Then we have discussed about systematic review, that is a structured way, comprehensive way. Then we discuss about meta-analysis, that is somewhat like, we are combining the results from multiple studies. Then we discuss about theoretical review, and that is based on some theories, right? We are going through some defined theories. Now, this review is an important part of any research, right? Either you are doing for your PhD or some project, whatever it is, for any research, review is a very important part, right? Or you can say the initial step that you have to take care of properly. Now, today's first topic is research question. What do we mean by research question? So research questions are specific inquiries the study aims to answer. कुछ क्वेश्चन होना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं अभी whatever we are doing, there should be some questions that ये particular query को solve करने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, right? So those questions about the study are known as research questions, right? Like यहाँ पे मैंने कुछ example दिया है. So research question is clear, focused query that guides a study aiming to investigate a specific issue of problem. ठीक है? हाँ, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी होगा आपका क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, हाँ, पर्सपेक्टिव टू दैट पार्टिकुलर स्टडी ओनली, राइट? आप किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हो तो यू नीड टू पुट सम रिसर्च क्वेरीज और रिसर्च क्वेश्चंस. एग्जांपल मैंने यहाँ ये दिए हैं, लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट teenagers' mental health. Now, this is the era of social media. Because of the social media, those who need not to be known by everyone now, got popularity. Not just popular, but some are just recommending some bad things in the society through social media. So many things are happening in the social media, not all of which are good, right? So this may affect the teenagers' mental health. Now, a question आया कि how does social media affect teenagers' mental health? Mental health में कैसे असर कर रहा है, कैसे negatively impact कर रहा है? तो ये भी एक आपका research question हो गया. Then how does climate change impact agriculture in developing countries like India, right? तो कैसे आपका climate change impact कर रहा है, right? So we know about this. Then in our Brahmaputra Valley, it is very good. It is okay. But if you consider about some other parts of this country, like, Tamil Nadu, and then some northern portion, the groundwater almost zero. So climate change adversely impact the agriculture production. So ये भी एक question हो सकता है कि कैसे, how does climate change impact agriculture in developing countries? That can again be a research question. Then what factors lead to successful urban renewable energy initiatives? Similarly, बहुत सारे questions मैंने देके रखा है. You can take a screenshot. So these are some examples of research question. आप इस questions को आप देखोगे तो देखना ये पूरा clear है, ये focus query है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फोकस किस में किया है कि टीनेजर्स का मेंटल हेल्थ, राइट? वी आर फोकसिंग टोटली ऑन दैट. हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट? तो पूरा क्लियर कट आपका क्वेश्चन है, फोकस क्वेरी है, राइट? तो रिसर्च क्वेश्चन में कभी भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी इन द रिसर्च क्वेश्चंस. दैट व्हाट आई एग्जैक्टली मीन टू से.
Now let's talk about the types. What are the types of research queries? Research questions. तो टाइप में देखो, फर्स्ट आपका है डेस्क्रिप्टिव. डेस्क्रिप्टिव लाइक एग्जांपल मैंने दिया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये डेस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च क्वेश्चन है. देन कंपैरेटिव मींस हाउ डज एक्स डिफर फ्रॉम सम अनदर ऑब्जेक्ट और अनदर एंटिटी वाई. ठीक है, ये कंपैरेटिव है. देन कैजुअल, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई. तो रिसर्च क्वेश्चंस आपका आइदर डेस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, कंपैरेटिव भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है. तो आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नाउ यू गॉट इट दैट व्हाट डज इट मीन बाय रिसर्च questions, right? Research questions, or you can say research queries. Now, my question is that give me at least 2 examples from each of them. Descriptive research question का एक example देना, sorry 2 example दे देना, अपना फील्ड से दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Then comparative का, casual का, so try to give some examples for each of them. Then again we come to one more means I think at the very beginning of the lecture also, my classes, I talk about hypothesis. So hypothesis is very important. Now, what is hypothesis? So definition is that this is a testable statement predicting a relationship between variables. आपको याद होगा मैंने 2 वेरिएबल्स के बारे में, 2 टाइप का वेरिएबल्स के बारे में बताया था. क्या था? एक था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या, इंडिपेंडेंट, राइट. There are 2 variables. One is आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल. हम रिसर्च में ये 2 वेरिएबल जो है ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम. ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस है. एक ये क्या है, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है दैट ट्राइज टू प्रेडिक्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल्स और बिटवीन दिस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. समझ में आ गया? तो ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट. डोंट कंफ्यूज हाइपोथेसिस विद असम्पशन. हाँ, ये हाइपोथेसिस भी एक असम्पशन ही है, बट ये टेस्टेबल असम्पशन है और टेस्टेबल स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर सकते हैं. आइदर इट कैन बी रॉन्ग, इट मे बी रॉन्ग और इट मे बी राइट. ओके, देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में. ठीक है, नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं एज नॉट. Null hypothesis means there is no relationship between the variables. There is or no relationship exists between the variables. वो हो गया आपका null hypothesis. ठीक है, then alternative hypothesis, इसको हम डिनोट करते हैं H1. ओके, H1 और alternative hypothesis माने क्या है, a relationship exists between these variables. Then directional hypothesis, it specifies the direction of the relationship. Okay, आपका जो relationship, yes, we agree with that a relationship exists between these variables. Now किस direction में है ये specify करना होगा, तो आपको directional hypothesis को लेना होगा, right? Then non-directional hypothesis, it predicts a relationship but does not specify any direction. तो आप लोगों ने देख लिया, हाइपोथेसिस मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करना पड़ता है, राइट? और ये क्या है एग्जैक्टली, ये एक रिलेशनशिप को दिखाता है, बताता है वेरिएबल्स के बीच. और वेरिएबल्स क्या क्या है आपका, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड हमने टाइप्स देखा, नल, ऑल्टरनेटिव, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल. नाउ लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ देम इन द प्रॉपर वे विद एग्जांपल्स. लाइक यहां अभी मैंने 2 एग्जांपल्स दिया है. H0 क्या है आपका, null hypothesis, right? Like there is no significant effect of online learning on student performance. जैसे अभी मैं आप लोगों का क्लासेस ऑनलाइन ले रहा हूं, रीजन बीइंग क्योंकि हम लोगों ने तो ऑफलाइन ही प्रपोज किया था, बट ऐसा बताया कि कोई PhD स्कॉलर बाहर से भी है तो ऑनलाइन बेटर होगा, फ्लेक्सिबल होगा. बट हमें ये जानना है कि ऑनलाइन क्लास के कारण कुछ पॉजिटिव या तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है क्या स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर. सो ये आपका अगर आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट,
तो वो हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो सिग्निफिकेंट, कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। सो यहाँ वेरिएबल्स क्या हो गया, वेरिएबल्स आपका ऑनलाइन लर्निंग एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस हो गया। रिमेंबर वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन लर्निंग के कारण स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है सपोज, ठीक है, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑनलाइन लर्निंग, राइट। तो इसमें कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा परफॉर्मेंस। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका ऑनलाइन लर्निंग। सो दैट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो H1 और एक है, ये क्या था, ऑल्टरनेटिव। ऑनलाइन लर्निंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ऐसा देखा गया कि क्योंकि फ्लेक्सिबल है, रिकॉर्डेड पार्ट भी मिल जाता है, जब चाहे वो फिर से एक बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग के कारण परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ हमें रिलेशनशिप मिल गया। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑनलाइन लर्निंग sorry, significantly improves the student performance. Got it? I hope my voice and my screen is clearly visible to all of you. If any part you find difficulty, you can just pause me and speak, right? ठीक है, well and good, then let's again come back to null hypothesis. क्या बोला था मैंने, no relationship exists between the variables. Variables के बीच में कोई relationship नहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, right? There is no significant relationship। और एक एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे, और आप लोग भी क्या करना, और एक एग्जांपल आप खुद की तरह से बनाने की कोशिश करना। तो दिस एग्जांपल इज, there is no significant relationship between sleep duration and student academic performance। ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ 5 hours स्लीप से क्या होता है, दैट इज एनफ, और 5 hours स्लीप से कभी कभी कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा नींद लेना चाहिए, सपोज 6 to 7 hours स्लीप इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट हमने इसका निगेटिव ले लिया कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है स्लीप ड्यूरेशन और स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वो हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। दिस मींस दैट चेंजेस इन स्लीप ड्यूरेशन डू नॉट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस। जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो इसका और एक एग्जांपल है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन एंड स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो हमने नाल में लिया था कोई रिलेशनशिप नहीं लिया था, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। तो अब हमने क्या लिया, यस सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है। सपोज कम सोएंगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस ज्यादा, परफॉर्मेंस निगेटिव में आ रहा है, तो that means there is relationship, right? So this is an example of alternative hypothesis. This suggests that sleep duration does impact the academic performance. It can be either positively or negatively. Then directional hypothesis, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था कि जो है रिलेशनशिप वो किस डायरेक्शन में है, राइट, दैट शुड बी स्पेसिफाइड। लाइक students who sleep for at least 7 hours per night score higher on academic tests than those who sleep less than 7 hours। हो भी सकता है ऐसा कि सपोज जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो अच्छे से नेक्स्ट डे सपोज मैथमेटिक्स का पेपर है, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा सही से, ठीक है, ऐसा और 20-30 स्टूडेंट्स का हमने डेटा ले लिया, राइट। तो हमें ये मिल गया कि जो हमने अज्यूम किया था, दे स्टूडेंट्स हु स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours पर नाइट स्कोर हायर, बट दोस हु स्कोर स्लीप लेस देन 7 hours परफॉर्मिंग वेरी बैड। तो दिस हाइपोथेसिस नाउ स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, और ये क्या डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मोर स्लीप ऑन academic score, positive effect of more sleep on academic score। क्योंकि 7 hours से कम जो सो रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा है, तो स्लीप ज्यादा करने से क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो ये हम मान सकते हैं ये पॉजिटिव इफेक्ट, बट अल्टीमेटली क्या है, ये एक डायरेक्शन बता रहे हैं। तो इस टाइप के हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्लियर? The next one is non-directional hypothesis, means it predicts a relationship that does not specify a direction। अब ये एग्जाम्पल को पढ़ो, there is a significant difference in academic performance between students who sleep for
at least 7 hours and those who sleep for less than 7 hours. But आप ये एग्जाम ये हाइपोथेसिस पढ़ोगे तो तुम्हें क्या ये पता लगेगा कि क्या परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या परफॉर्मेंस कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है या निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है. You cannot get it from this hypothesis, right? This means Thank you for informing, man. this means you are not aware or you are not means clear with the direction that in which direction the hypothesis tries to mean that particular assumption. So that type of hypothesis where it does affect, or you can say relationship is not showing any direction, is known as non-directional hypothesis. तो हमने देख लिया क्या क्या देखा. पहला जो था आपका नल हाइपोथेसिस H0, उसके बाद हमने देखा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शन. इसका भी एक एक एग्जांपल आप लोग अपने ओर से दोगे फ्रॉम योर ओन स्पेसिफिक फील्ड. इफ यू आर सपोज फ्रॉम biological field, so some suppose life science, you can give an example from your own field. Similarly, those from social science or other, suppose engineering, so you can give one example from your own area, right? Now let's again come to the another term, assumption. Students or scholars confuse क्या होता है इन दोनों टर्म से. एक हाइपोथेसिस और एक assumption, दोनों को एक ही समझ लेते हैं. बात मैंने पहले भी बोल दिया था कि हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, बट एजम्पशन में ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो, बट इसको प्रूव करना है नहीं करना है ऐसा आपके ऊपर है. सो देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया ऑन एजम्पशन. तो डेफिनेशन कैसे देंगे हम? Assumptions are basic beliefs that researchers accept as true without direct evidence. फिर से बोलता हूं, assumption basic beliefs है जो रिसर्चर्स, आप जैसे रिसर्चर्स मान रहे हैं ट्रू, बट इस जो आप ट्रू मान रहे हो ना, उसके लिए आपके पास एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे आप दिखा सकते हो कि ये ट्रू है, राइट? सो दिस आर assumption. तो क्वेश्चन पूछ सकता है द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड assumption. आई होप दैट नाउ इट इज क्लियर टू यू. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Participants will provide honest responses in a survey based study. ठीक है, आप लोगों में से कोई सपोज मैनेजमेंट फील्ड से हो, आप लोगों का मैक्सिमम काम सर्वे के ऊपर होता है, ठीक है, बट आप ये मान के चल रहे हो कि जो भी रेस्पॉन्सेस पार्टिसिपेंट्स दे रहे हैं वो सही है. क्या आपके पास कुछ एविडेंस है उसको प्रूव करने का? नहीं है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये assumption होगा, ये हाइपोथेसिस नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज द assumption. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज ethical issues in different steps of research. हमारे जो रिसर्च है, रिसर्च कंडक्ट करते हैं हम, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, बहुत सारे स्टेजेस के होके जाते हैं, राइट? अब इन सारे स्टेजेस में एथिकल इश्यूज कहाँ कहाँ आ सकता है? यू नो, एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च. अगर मैं पहले फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था कि आप जो भी करो, ठीक है, टाइम लगाओ, दैट इज ओके. पूरा नोवेल नहीं भी कर पा रहे हो, बट पहले का एग्जिस्टेंस मेथड को इम्प्रोवाइज कर रहे हो, that is also okay, but do not copy, never copy from others work, never and ever copy from others work. किसी का रिसर्च पेपर है, उसको आप डायरेक्ट कॉपी करके खुद का बना रहे हो, ऐसा गलती से नहीं करना है. और जेनरेटिव एआई यूज मत करना. खुद जो भी लिखोगे खुद लिखना, एक एक सेंटेंस ये लिखना, और खुद को ही अच्छा लगेगा जब आपका काम हो जाएगा और आप ये बोल पाओगे कि ये आपने किया है, जो भी काम किया है आपने किया है. ठीक है, सो एथिक बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में. Ethics play a crucial role in ensuring the credibility and integrity of research. Now, few key ethical considerations are: first, research planning. मैंने पहला फर्स्ट डे में ही बोल दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे करोगे आप, राइट? सो इन द रिसर्च प्लानिंग स्टेज यू शुड अवॉइड conflicts of interest and also ensure feasibility. Conflicts of interest नहीं होना चाहिए, right?
किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है, हमें ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम लेना है। सेकेंड, डेटा कलेक्शन, obtaining informed consent, ensuring privacy and confidentiality। देखो, डेटा कलेक्शन में आपको जब डेटा कलेक्ट करने जाओगे, जैसे कि सपोज मैं कुछ काम कर रहा हूं जो आपका मेडिकल इमेजेस से रिलेटेड हो, मेडिकल डाटा से रिलेटेड हो, जिसमें कुछ हमने सपोज, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि करंटली आई एम डूइंग वन वर्क ऑन ओवरी कैंसर डिटेक्शन। ठीक है, ओवरी कैंसर डिटेक्शन, सो आई एम कलेक्टिंग फ्यू डेटा फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड सम डायग्नोस्टिक सेंटर्स। नाउ ये जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, किसी के प्राइवेसी की बात है, राइट, ऑब्वियसली है। तो हम जब भी डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्म होना चाहिए कि हम जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और जिसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, उनका कंसेंट लेना जरूरी है, राइट। तो आप लोगों को अभी से बता रहा हूं, आप जब ये करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे, तो प्लीज इस चीज को ध्यान देना कि यू शुड टेक कंसेंट फ्रॉम देम, फ्रॉम होम यू आर actually collecting the data, and also from them actually whose data, that particular data you are collecting, right। प्राइवेसी को ध्यान देना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, मैं उसमें ये मेंशन नहीं करूंगा कि ये पार्टिकुलर लेडी का नाम है, ये पार्टिकुलर एड्रेस है उनका, ये सब नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, प्राइवेसी हो गया, यू शुड नॉट ब्रेक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च एथिकल कंसिडरेशन that is done during the stage of data collection। ठीक है। देन डेटा एनालिसिस, बहुत लोग क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, फॉल्सिफाई करते हैं, राइट। नहीं करना चाहिए आपको। आप अगर डाटा को ही फॉल्सिफाई करोगे, आप डाटा को ही मैनिपुलेट करोगे, उसके रिजल्ट को आप शो अप करोगे सभी को, राइट, तो क्या होगा, the other researchers will depend on your outcome, and your outcome is totally a false outcome because you have manipulated the data, right। So this is again one very important thing, that you should not, or you should not manipulate or falsify the data during the data analysis part। Then publication and reporting, acknowledging all contributors and avoiding plagiarism। आप रिसर्च पेपर जब भी पब्लिश करने जाओगे, लिखोगे, पहले सबसे पहले तो आपको सभी का रिफरेंस, जहां जहां से भी आपने पढ़ा है, चाहे रिसर्च पेपर हो, बुक्स हो, कोई रिपोर्ट्स हो, यू हैव टू साइट देम प्रॉपरली, यू हैव टू गिव यू नो proper reference to those resources from which you are collecting the data, right। And also avoid the plagiarism। आपको कॉपी पेस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चाहे 1 महीने की जगह पे 2 महीने लग जाए, आपको जो भी लिखना है खुद लिखना है, राइट। प्लेगरिज्म मीन्स क्या होता है, आपका जो डेटा है, आपका जो टेक्स्ट है, दैट इज फाउंड सिमिलर टू सम अनदर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट रिसर्च, सम लिटरेचर, राइट। सो प्लेगरिज्म मतलब सिमिलरिटी मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है। इजी वे में हम बोलेंगे तो कॉपी पेस्ट वर्क है, तो ये सब आपको हटाना है, ठीक है। देन ह्यूमन एंड एनिमल रिसर्च, adhering to ethical guidance, right। One algorithm or one very important declaration is there, Helsinki declaration। तो जो भी हम ह्यूमन और एनिमल रिसर्च कर रहे हैं, तो गाइडलाइंस के अंदर करना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन हम स्पेसिस भी जो ले रहे हैं, जो भी आप स्पेसिमेंट्स ले रहे हो, ठीक है, तो उसका गाइडलाइंस और उसका जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, उसको आपको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर एनिमल रिसर्च ऑल्सो। तो ये देख लिया आपने एथिकल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉमन एथिकल वायलेशन जो मैक्सिमम पीएचडी स्कॉलर करते हैं। फर्स्ट तो करेंगे, कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं, ठीक है। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, हमने देखा है ये ऐसे, ठीक है, हमने ऐसा भी देखा है कि अवार्ड हो जाने के बाद भी वो अवार्ड छीन लिया जाता है, ठीक है। मैंने देखा था while I was in Indore, that I will not mention the university name, but that happened in even in Assam also, even in Jorhat also। It's a very popular person, I think you guys know also। So he has directly copied from another work, used to be the principal। So कुछ हुआ तो ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, प्लेगरिज्म।
यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन। अगर आप किसी और का वर्क भी ले रहे हो, अपने भाषा में भी लिख रहे हो सेंटेंस में, तो आपको साइटेशन देना जरूरी है। देन फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। फैब्रिकेशन करना, फॉल्सिफिकेशन करना गलत है। सो अल्टरिंग डेटा टू मिस रिप्रेजेंट फाइंडिंग्स, राइट। जबरदस्ती मुझे ये फाइंडिंग मिला है, आप वो फॉल्सिफाई करके दिखा रहे हो, बता रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। इसको हम क्या बोलते हैं? फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। देन लेक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, कंडक्टिंग स्टडीज विदाउट पार्टिसिपेंट अप्रूवल। जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया कि जो भी डेटा आप ले रहे हो ना, आपको प्रॉपर कंसेंट के थ्रू लेना है, ठीक है, इन्फॉर्म करना है। तो ये एथिकल वायलेशन है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या एथिकल वायलेशन है, देख लिया आप लोगों ने। सो प्लैगियरिज्म, फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन एंड लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या क्या हो सकता है? सो रिसर्च डिजाइन इज ए फ्रेमवर्क दैट गाइड्स द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसेस। आप इसमें एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, डेस्क्रिप्टिव भी, और एक्सप्लेनेटरी। ये पूछता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो प्लीज माइंड इट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स व्हाट? इन्वेस्टिगेटिंग न्यू फेनोमेना विथ लिटिल प्रायर नॉलेज। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप फिर भी उसी नॉलेज के आधार पे आप नया फेनोमेना को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो होता है एक्सप्लोरेटरी। डेस्क्रिप्टिव मींस प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट। पूरा डिस्क्रिप्शन है कोई भी पार्टिकुलर, जैसे कि सपोज आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, एम्प्लॉइज, क्या बोल सकते हैं, एक था, जस्ट ए मिनट, वर्किंग एनवायरमेंट्स में एम्प्लॉय का जो इमोशनल एनालिसिस कर रहे हो, या तो ऐसा एक था, मैं भूल रहा हूँ टर्म एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको पूरे एम्प्लॉयज का डिटेल में जाना पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एक केबिन एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज का क्या इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो केबिन एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट उनके टीचिंग में कैसा होता है। तो दिस थिंग्स कम्स अंडर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च बिकॉज यू नीड टू गो थ्रू properly every subject, and in this case subject is your colleagues, right? So that is descriptive research. So detailed account of a subject is required. Then explanatory research, don't confuse, one is exploratory, another is explanatory. Explanatory research means explaining causal relationship between the variable, dependent and independent variables के बीच आप relationship को explain कर रहे हो। ये चीज ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, सपोज, ठीक है। सपोज किसी का सैलरी नहीं आया है, इसलिए उन लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया है, ठीक है, वो अपने क्लास में रेगुलरली नहीं जा रहे हैं, कोई कोई क्लास को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेटरी, हम एक्सप्लेन दे रहा है कि ये चीज के कारण ऐसा हो रहा है, तो ये आ गया आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो आप लोगों ने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च और उसका एग्जांपल्स। Now let's go through them properly with proper definition. So exploratory, investigating new phenomena with little prior analysis. Like यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हूँ, ध्यान देना, और आप लोगों को एज यूजुअल यही क्वेश्चन पूछूंगा आज मैं, आज ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ओके। तो वन एग्जांपल फ्रॉम योर साइड। फिर से एक एग्जांपल है, स्टडिंग द पोटेंशियल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन मेडिकल डायग्नोस्टिक। देखो अभी जो हम कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं ना, वो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है। इमेजिन करो क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, जो कि मिलियंस टाइम्स फास्टर हो सकता है हमारा करंट कंप्यूटिंग में। करंट कंप्यूटिंग में क्या होता है, 0 एंड 1 बिट्स ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब क्वांटम बिट्स ले लेंगे तो ऐसा 0 एंड 1 का बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, बट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। हमारा इंडिया में सिर्फ एक दो जगह में ऐसा लैब बन रहा है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीजिंग एनवायरमेंट चाहिए। तो ये सब जो डेवलप कंट्रीज लाइक आपका जो यूरोपियन कंट्रीज है, और चाइना, चाइना तो बहुत ही एडवांस काम कर रहा है इसमें। तो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को हम मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए यूज करेंगे, तो पूरा एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है कि ये इस स्टेज में है। सपोज सबसे जो डेंजरस डिजीज अभी हम बोलते हैं कैंसर, कैंसर का बहुत पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक पर्सन का होने का संभावना क्या है, और किस स्टेज में है, और कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। वी कैन एनालाइज एवरीथिंग। So quantum computing in medicine is still emerging. I have said it, right? This research explores its feasibility without prior established studies. क्योंकि अभी तो ये ग्रो कर रहा है, अभी हमारे पास लैब ही इतना नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को हम ला पाए, राइट? तो हम किस आधार पे बोल रहे हैं? तो इसमें आपका पास जो प्रायर मतलब पब्लिश रिसर्च है वो बहुत कम है। तो ऐसा नेरो और
लिटिल प्रायर नॉलेज के साथ जब इन्वेस्टिगेट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को एक एग्जांपल आपकी ओर से देना है, आज बहुत सारे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट प्रोवाइड्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, लाइक ए सर्वे ऑन स्मार्टफोन uses patterns among university students. And this study describes how students use smartphones for studying, for entertainment, or for social media without analyzing causes. तो आजकल जो स्मार्टफोन का है उसका इम्पेक्ट कैसे हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर, ये भी एक सब्जेक्ट बेसिस हो जाएगा, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, यस और नो। जैसे कि अभी देखो अब ये बहुत बैड थिंग हो रहा है कि स्टूडेंट्स चैट जीपीटी या तो जेनरेटिव एआई यूज कर, इवन फैकल्टी भी यूज कर रहे हैं। वी शुड नॉट यूज इट। फर्स्ट वी हैव टू यूज आवर ओन ब्रेन टू एनालाइज द थिंग्स। कोई भी असाइनमेंट दे रहे हो, कोई भी मैथमेटिक्स या तो जो भी प्रोग्रामिंग दे रहे हो, जो भी आपका आइडिया का हो, तो पहले खुद करना चाहिए, अदरवाइज हाउ कुड दे डेवलप देयर ओन थिंकिंग एबिलिटी, राइट? They will be totally dependent on AI, and that's not a good sign, because in future if they go for competing the or sitting for the competitive exam, they will fail to succeed it, right, cracking. तो ये स्टडी हो गया आपका स्मार्टफोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर स्मार्टफोन रखेंगे, वो तब चैट जीपीटी यूज करेगा या तो ऐसा कुछ भी, बहुत सारे जेनेटिव है ये यूज करेगा। रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं, चैट जीपीटी यूज करने लगा है, उनका खुद का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन तो जीरो हो रहा है। सो ये हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। देन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, तो एक कैजुअल रिलेशन पहले एक एग्जांपल दे दिया था, लाइक हाउ रेगुलर एक्सरसाइज अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ इन यंग एडल्ट्स, राइट? दिस रिसर्च examines whether exercise directly improves mental well-being, showing a causal effect relationship। जो ये भी एक कैजुअल टाइप का है, एक्सरसाइज करने से आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है या कम होता है, राइट? सो दिस थ्री आर द मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स। नाउ रिसर्च अप्रोच के बेस पे आपका रिसर्च टाइप से, लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा एथनोग्राफी। ये टर्म्स को याद रखना, एथनोग्राफी मींस स्टडीइंग कल्चर्स एंड कम्युनिटीज, ठीक है। देन केस स्टडी, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल केस। केस स्टडी तो आप लोगों को बहुत मिलेगा, एक केस स्टडी दे देंगे, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस। देन ग्राउंडेड थ्योरी, डेवलपिंग थ्योरीज बेस्ड ऑन डाटा। एथनोग्राफी टर्म के बारे में पहले भी पूछा है, तो जब भी हम कल्चर एंड कम्युनिटीज के बारे में स्टडी करते हैं, दैट फॉल्स अंडर एथनोग्राफी। देन ग्राउंडेड थ्योरी, डेवलपिंग थ्योरीज बेस्ड ऑन डाटा। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में आपका एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा, टेस्टिंग कैजुअल रिलेशनशिप अंडर कंट्रोल कंडीशंस। देन सर्वे रिसर्च में कलेक्टिंग स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्सेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। देन कोरिलेशनल, जस्ट अ मिनट, let me, okay, correlational research examining the relationship between variables. Okay, please take care of the terms. Now key elements of research design. Okay, you can take care, or you can take screenshot of this diagram, but we will go through each step again, or each element again. तो फर्स्ट है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आप जब भी आप सिनोप्सिस बनाओगे, और या तो आप फर्स्ट आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, आप क्या करोगे कि इस काम को कैसे करोगे, और इस काम को करने के लिए आपके पास क्या क्या मेन एम रहेगा, क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, दैट इज अ की एलिमेंट। देन सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए होगा आपको। देन सैम्पलिंग मेथड, सारे डेटा को तो एक साथ नहीं ले सकते हो, राइट, सैंपल लेना पड़ेगा, और देयर आर डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स। देन डेटा कलेक्शन टेक्निक, सर्वे करोगे या खुद फील्ड जा में जाके कलेक्ट डाटा कलेक्ट करोगे। देन डेटा एनालिसिस मेथड्स क्या यूज करोगे, राइट? सो these are the different stages. So this, with this we have completed our, just a minute, module 2 modules, so हमने complete कर लिया है। I hope that every term is now clear to you. So मैं आज थर्ड मॉड्यूल में नहीं जा रहा हूँ, in the next class we'll go to the third module. But जो भी मैंने आज असाइनमेंट दिया है, you can take time, because a lot of questions today I have asked. Please go through them. Please write the examples only from your side. टाइम लगाओ, कोई बात नहीं, but खुद सोच के दोगे, ठीक है? You will not be going to use ChatGPT or any generative AI. Okay, guys. So I hope it is clear to everyone. Yes, sir. So thank you.
Bye-bye.